Hello students, today I will discuss two topics with you. First one, equipotential surfaces, and second one, potential gradient. Now, I will start with equipotential surfaces first of all, okay? Now, sirs, be ready with your pen and register. Okay, listen carefully, understand, and then note each and everything from the whiteboard. Fine. Now, equipotential surface. Okay, equi means same, and potential is potential. So, sirs, the surface is said to be equipotential if at every point on it the potential is same. Got it? It is the most simplest definition of equipotential surface. So I am writing it on the board. Better note it down. The surface is said to be equipotential surface if the potential is same at every point on it. Okay, note it down. बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली सरफेस होती है जिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हैव यू कॉपीड इट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, some properties of equipotential surfaces. We can say properties of equipotential surfaces or some key points which are to be used. I will discuss each and every key point, okay, on the whiteboard. Look carefully, understand it, and each and every point is very important, and the importance is of worth 1 mark or 2 mark again. Okay? The first thing, students, or you can say that the work done in moving any charge on the equipotential surface work done in moving any charge on the equipotential surface from one point to the other is 0. Why 0? Take a look. Now, since it is the most important key point,
regarding the equipotential surfaces. Why it is so? Since we can use the definition of potential difference. The definition of potential difference was, say, VA minus VB, where A and B are any 2 points. Okay? Then it is always equals to, say, WBA divided by Q naught, where Q naught is a charge which is being moved. Now, since as we are talking about the equipotential surface, okay, so on equipotential surface, I am saying that the points A and B, they lies on the equipotential surface. Okay, so say points A and B lies on the equipotential surface. Now, if the points A and B, they lies on the equipotential surface, and by definition of equipotential surface, since this VA, it will be exactly equals to VB. If this VA is equals to VB, then what you can say? We can say that this VA minus VB, it will be equals to 0. Now, if this VA minus VB is equals to 0, then putting it over here, what we can say? We can say that this WBA divided by Q naught, it will be equals to 0. This implies this WBA, it is equals to 0. Got it? That is, if you are moving the charge Q naught from the point A to the point B, or from the point B to the point A, anywhere, via any path. Okay, students? Got it? Clear? Now let us suppose I am giving you the illustration. First of all, copy it. Done? Come on, make it fast. Okay? Fine. Now let us suppose that this plane surface is the equipotential surface, and I am saying it has the point say A, it has the point say B. These 2 points A and B, they lies on the equipotential surface. Now you are having the charge say plus Q naught, and we are going to move the charge plus Q naught from B to A or A to B via any path. Let us suppose I am making the charge plus Q naught to go from the point B to the point A. Let us suppose it is the first path. Okay? And then I am moving the same charge say plus Q naught from the point B to the point A along this curved path. I am saying it is say the second path. Got it, friends? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाथ कोई भी है, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है? अगर कोई भी 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, आपने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराना है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इज ऑलवेज 0. ओके, चलिए बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ द सेकंड पॉइंट. नाउ द सेकंड पॉइंट, we are going to sketch the equipotential surfaces for the isolated charges. Clear? Now, चलिए स्केच करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं. वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन 0 निकल के आता है. ओके, चलिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन पहले डिस्कस करते हैं. क्लियर? नाउ लेट अस सपोज दिस, आई एम सेइंग दैट
there are 2 points say A and B. Okay, there are say 2 points A and B. There are say 2 points A and B, and let us suppose we are moving the charge say plus Q naught from the point A to the point B, or from the point B to the point A. Okay, okay, okay. Now this WBA, I'm saying that WBA is the work done in moving the charge say plus Q naught from the point B to the point A on the equipotential surface. Clear? Now बेटा जैसे हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, वर्क डन क्या था? वर्क डन इज रिटन एज से वेक्टर F डॉट वेक्टर dr. Yes or no? Vector dr was the displacement vector. Vector F is the force vector. Now this vector F is written as say Q naught multiplied with vector E. This Q naught is the charge which is being moved in the electric field say vector E. So since we can say that this WBA can be written as say Q naught into vector E dot vector dr. Yes or no? बात समझ आ गई? अब अगर स्ट्रेस पॉइंट्स A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं, से points A and B lies on the equipotential surface. Got it? Then what will happen? अभी डिस्कस किया था. This WBA it will be equals to 0. Now if this WBA is equals to 0, and WBA was Q naught into vector E dot vector dr. So since we can say that this Q naught into vector E dot vector dr it is equals to 0. Now further I can say that this vector E dot vector dr is again equals to 0. Now since vector E dot vector dr is equals to 0, तो बेटा यहां से क्या पता लगता है? डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? तब होता है जब दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है, या फिर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 0 हो. और अगर कहीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 सिर्फ तब होता है जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. चलिए इसको रिड्यूस करके दिखाता हूं. Now the vector E dot vector dr is equals to 0. I can say by definition of dot product it is written as say E into dr into say cos theta and it is equals to 0. अब क्योंकि स्वयं हमने कंसीडर कर लिया था कि हम चार्ज Q naught को वेक्टर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर? हम मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमने दिया था, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ तो है. नाउ सिंस दिस E is not equals to 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q naught को मूव किया था. ऑल्सो दिस dr is also not equals to 0. तो बेटा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना dr 0 है, तो क्या हुआ? तो यहां से क्या पता लगेगा? बेटा E dr cos थीटा इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो E 0 होना चाहिए या dr 0 होना चाहिए या ये दोनों 0 होने चाहिए. अगर ये सब कुछ 0 नहीं है तो इसका मतलब बेटा ये जो cos थीटा है ये 0 होना चाहिए. समझ आ गई बात? Now this implies that cos theta is 0. This implies that cos theta it should be equals to 0. अगर cos theta 0 है तो cos theta 0 कब होता है? सबको मालूम है cos 90 डिग्रीज पर 0 होता है. इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्रीज. थीटा इज 90 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया? थीटा इज 90 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया कि स्वयं अगर वेक्टर dr इज से द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, गॉट इट? वेक्टर dr is the small displacement on the equipotential surface. Then since the electric field it should be perpendicular to vector dr.
इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर dr। गॉट इट? समझ आ गई बात? तो यहां से क्या पता लगा? यहां से ये पता लगा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें और उस पॉइंट का विड्थ, उस पॉइंट का लेंथ अगर हम dr बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dr वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आ गई ये बात? ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, कॉपी कर लिया था। नाउ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट electric field is perpendicular at every point on the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आ जाए कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो प्रूव क्या करना होगा बेटा? ये जो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई थी ये प्रूव करनी होगी। समझ आ गई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, साथ साथ कॉपी करते जाए। आज काम ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड से करना होगा। Now, इस पॉइंट में we are going to sketch the equipotential surfaces of, first of all, the isolated charges, then the equipotential surface and the uniform electric field. Fine, सिर्फ दो करते हैं, काफी हैं। Equipotential surface for isolated charge। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज। चलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा जब हम चार्ज प्लस क्यू को कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज से वी आर कंसीडरिंग द चार्ज से प्लस क्यू। ओके, अब फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड, यस और नो? और ये थर्ड पॉइंट चल रहा है। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए इस वाले केस में? द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट विल बी द स्फीयर, इट विल बी द स्फीयर हैविंग द चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी स्फीयर हो, ठीक है, स्फीयर का रेडियस स्फीयर पर हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। स्फीयर पर किसी भी पॉइंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात हो जाए तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क करनी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलना है कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है हैविंग द चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। समझ आ गई बात? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, लेट अस सपोज से माइनस क्यू इज द चार्ज। अब बेटा नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे शुड बी परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फाइन, तो यहां पर भी
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट विल बी द स्फीयर हैविंग द चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। क्लियर? समझ आ गई बात? फ्लूइड लाइन ज्यादा करने की इच्छा है तो थोड़ी ज्यादा कर ले। एरोज मार्क करने मत भूलना, क्योंकि बिना एरोज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई मतलब नहीं होता, और अगर बिना एरोज के लाइन मार दी और स्फीयर बना दिया तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और आइसोलेटेड चार्ज कैसी होती हैं? दे आर द स्फीयर, दे आर द स्फीयर। चलिए पहले इसे कॉपी कर लें, मैं यहां पे चलिए लिख देता हूं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर isolated charge is the sphere, is the sphere having the charge located at its center। सिंपल सी बात समझ आ गई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आइसोलेटेड चार्ज का कैसा होने वाला है? स्फीयर होने वाला है, हैविंग द चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। फटाफट कॉपी करें। डन? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, स्वेल्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होने वाला? फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज, चलिए पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं, नोट कर लें इसको। द इक्विपोटेंशियल surface in the uniform electric field is the को छोड़िए, are the planes, are the parallel planes, I can say parallel planes perpendicular to the direction of electric field। ओके, नोट कर दें इसको। Equipotential surface in the uniform electric field are the parallel planes or the planes parallel to each other। चलिए थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। are the planes parallel to each other and perpendicular to the direction of the electric field। अभी मैं स्केच करके दिखा रहा हूं आपको। डन? नाउ ध्यान से समझिए। लेट अस सपोज से इट इज द प्लेन let us suppose it is the first plane and the second plane and the two planes, they are parallel to each other। Got it? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। समझ आ गई बात? कॉपी कर लिया, फटाफट कॉपी कर ले। So it is simply the direction of the electric field, and these two planes, they are the equipotential surfaces. Got it? Okay. इसको स्केच कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। Let us suppose say it is the uniform electric field, और अगर मैं डॉटेड लाइन से प्लेन को रिप्रेजेंट करता हूं तो फ्रेंड्स ये जो दो प्लेन्स मैंने बनाए हैं, ये जो दो प्लेन्स हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। से वेक्टर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? ओके, तो ये जो दो प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये वाली और ये वाली कॉपी करें। डन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, फ्रेंड्स कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। कोई भी दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर जाएं तो फ्रेंड्स उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर या उस इंटरसेक्शन पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करेंगे दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, तो आपको दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात? फिफ्थ पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other. Okay, it is so because if they intersected each other, then at the intersection there will exist two different directions of electric field perpendicular to the equipotential surfaces which is not possible. सिंपल सी बात समझ आ गई? क्योंकि अभी हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट होती हैं तो फ्रेंड्स जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मिलेगा। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड की
तो एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर पोजीशन पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शंस तो नहीं होती है, ठीक है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। समझ आ गई बात? कॉपी कर। डन? ओके, चलिए सर सब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। सबसे पहले स्टूडेंट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? ये बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है which means that there is the change in potential with distance। अगर कभी भी किसी भी रीजन में या कहीं पर भी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो स्टूडेंट्स इस वेरिएशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उस रिलेशन को हमें डिराइव करना है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dv बाय dx, वेयर इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। यहां पे हम क्या बोलेंगे? dv इज द चेंज इन पोटेंशियल विद द distance or with the change in distance say x। तो बेटा v पोटेंशियल है और x डिस्टेंस है। v क्या है? v पोटेंशियल है और x डिस्टेंस है। समझ आ गई बात? ओके, पहले पढ़ी बात। असस पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट से SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। करेक्ट? समझ आ गई बात? न्या Since I want to derive the relation between electric field and potential gradient, अब स्टूडेंट्स इसे डिराइव करने के लिए ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से इट इज से द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, एंड दीज टू दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इट इज से द पॉइंट A and it is say the point B on the two different equipotential surfaces. Clear? Let us suppose say the potential of this point A, the potential of this point A is suppose say V, and the potential of this point B is suppose say V minus dV. Clear? तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? ये जो dV है, dV is the decrease in potential. What is dV? dV is the decrease in पोटेंशियल। बात समझ आ गई? अब लेट अस सपोज वी आर हैविंग द चार्ज से प्लस के नॉट, ओके,
which is present in this electric field, say vector E. And what we are doing, we are moving this charge plus q naught from the point B to the point A. बेटा चार्ज प्लस क्यू नॉट को कैसे मूव कराएंगे? चार्ज प्लस क्यू नॉट को मूव कराएंगे फ्रॉम द पॉइंट बी टू द पॉइंट ए. पल्ले पड़ गई बात. और फ्रेंड्स क्योंकि ये चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के अंदर है, तो ये चार्ज क्यू नॉट इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर एफ. बात समझ आई? जल्दी से कॉपी करें. डन. मैं कंसिडरेशन दे रहा हूं, नोट कर ले उसको. सपोज there exists the points A and B in the external electric field vector E. Let V be the potential of the point A and the potential of the point B is V minus dV. Full stop. Suppose the charge plus q naught is to be moved from the point B to the point A with zero acceleration, and WBA is the work done in moving the charge plus q naught from the point B to the point A. अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें. This WBA it will be equal to, so it's work done in moving the charge से plus q naught from the point B to the point A. तो सर हमें फोर्स लगाना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. किसके ऑपोजिट? ऑपोजिट टू वेक्टर एफ. कम से कम कितना? कम से कम एफ के जितना. समझ आ गई बात? सो सर WBA is written as वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dr. वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dr. ओके. नाउ आई कैन से इट इज रिटन एज, चलिए पहले बात करते हैं. It is written as f into say dr into say cos of 180 degree. Cos 180 क्यों? क्योंकि वेक्टर f इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और आप चार्ज को मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन. Cos 180 कितना होता है? Cos 180 minus 1 होता है. So I can say this is written as say minus f into dr. Okay? f कितना होता है? f is equals to q naught into वेक्टर e होता है. In magnitude f is equals to q naught into e. तो f का वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं. So hence this WBA is written as negative of Q naught into say E into say dr. सिंपल सी बात है, समझ आ गई? क्लियर? अब एक काम करते हैं. Let us call this equation as equation number first. Now since what we are doing, we will use the definition of potential difference. We will use the definition of potential difference. याद रखें, पॉइंट A का पोटेंशियल V था, पॉइंट B का पोटेंशियल V माइनस dV रखा था, V माइनस dV रखा था, और dV को डिक्रीज इन द पोटेंशियल बोला था. ओके, नेक्स्ट लाइन में देखें. यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, using definition of potential difference, say VA minus say VB is written as say WBA divided by Q naught. Yes or no? Got it? अब एक काम करते हैं, WBA का जो एक्सप्रेशन यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, इसको यहां पर प्लेस करते हैं. ओके, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा पहले इसको रिड्यूस करते हैं. कॉपी कर लिया यहां तक? यहां तक कॉपी हो चुका है. मैं यहां पे लिख रहा हूं. नाउ VA was V and VB was V minus dV. Got it? सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, सो फ्रेंड्स, VA minus VB it can be written as say V minus say V minus say dV. So this VA minus VB it can be written as say V minus say V plus say dV. VB cancel. So this VA minus VB
VA minus VB, it is equals to say DV. ओके, तो स्टूडेंट्स VA minus VB का वैल्यू यहां पे डालते हैं. Now this implies that VA minus VB equals to DV, इसका वैल्यू यहां पे डाल दें. ध्यान से देखें. This implies that this DV is written as say WBA divided by Q naught. ओके, ठीक है. मतलब this WBA is written as say Q naught into say DV. चलिए एक काम करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में लिख लें, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद द इक्वेशन सेकंड. यहां तक हो चुका है. कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड. दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं. सो वी कैन से द Q naught into say dV is written as negative of say Q naught into say E into say dR. Q naught is cancelled. What we are left? We are left with this dV is equals to negative of E into dR. dV is written as negative of E into dR. बात समझ आ गई? Clear? So since the potential gradient dV by dR is written as negative of E. Okay, or what I can say that the electric field E is written as negative of dV by dR. It is the relationship between the electric field and the potential gradient. समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी कर लें. जल्दी से कॉपी करें. डन. स्टूडेंट्स हम एक जनरलाइजेशन देते हैं. इन जनरल अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, in general dV is written as negative of vector E dot vector dr. क्योंकि स्टूडेंट्स आप चार्ज प्लस Q naught को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे. समझ आ गई बात? अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि वेक्टर dr और वेक्टर E के बीच में कोई एक्यूट एंगल आए तो यहां पे यूज होगा. ओके, कैसे यूज होगा? Thus dV is written as negative of E into dr into say cos theta, where what is theta? Theta will be the angle between directions of vector E and vector dr. तो इन जनरल स्टूडेंट्स हमेशा ये काम करना है. ठीक है? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहा हूं. डन. इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहा हूं. पहला की पॉइंट, if suppose say V is say the function of R. ओके, अगर सर पोटेंशियल डिस्टेंस की टर्म्स में डिफाइन किया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, देन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट यू हैव टू डू, आपने हमेशा डिफरेंशिएशन करना है. क्या करना है? यूज डिफरेंशिएशन. कैसे? ऐसे E is written as negative of d by dr into say fr. जो भी गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें विद डिस्टेंस. साथ में नेगेटिव साइन लगाना जरूर याद रखें, इसे ना भूलें. पहले पड़ गई पहली बात. ओके, पहला की पॉइंट है पोटेंशियल डिस्टेंस की टर्म्स में दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है.
अगर ये डाटा है तो इस डाटा से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी का कन्वर्स सेकंड की पॉइंट। सेकंड की पॉइंट, अगर डाटा में इलेक्ट्रिक फील्ड इज से द फंक्शन ऑफ आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर है तो इस डाटा से आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट between any two points, say A and B, क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। यूज करें इंटीग्रल ऑफ dv फ्रॉम VA to VB, it will be equals to negative of integral of E into say dr, ठीक है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, इट इज फ्रॉम RA टू RB। क्लियर? इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ dv फ्रॉम VA टू VB, तो ये सॉल्व करने पे मिलेगा VB माइनस VA, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव का साइन लगा ले, जो भी गिवन फंक्शन होगा से f इंटू आर इंटू डी आर करें, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम आर ए टू आर बी। बात समझ आ गई? ओके। तो फ्रेंड्स ये दो की पॉइंट्स होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के। क्लियर? डन? कॉपीड? तो चलिए आज सिर्फ इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। करने तो आज थे हमने पोटेंशियल के, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी किया तब बोला था कि आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना था, तो आज हमारा पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। छोटा टॉपिक है, न्यूमेरिकल सिंपल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे पोटेंशियल के। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड, ओके, लर्निंग पूरी करके रखें, मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दिखा दूंगा। फाइन, इट इज ऑल फॉर टुडे।